Yeah, over to you. Yes. Just a sec, Akshay. Okay, so hello guys. So Akshay sir, I've already given a wonderful introduction of me. So my name is Nidhi Tatir once again, and I am currently a 8th semester student, electronics and communication. So as you already said, I have just got placed in three companies: Infosys, Cognizant, and Agile DX. So here I am to share my experiences, and basically today's agenda is how to prepare for interviews rather than how to crack interviews. क्योंकि सिंस यू आर ऑल इन थर्ड ईयर, सो अभी मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि इंटरव्यू में क्या करना है इज नॉट द फोकस, इंटरव्यू में कैसे करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो गाइज एम आई ऑडिबल टू ऑल? अच्छा हाँ, सिंस यू आर ऑल ऑन म्यूट, देयर इज अ बटन, रिएक्शन बटन, इन विच यू कैन थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल. Guys, I want a thumbs up from you all if I'm audible. They are raising hands. Okay, all right then. Okay, I'm assuming I'm audible to all. So, I have planned the session in three parts. Firstly, I'll be discussing how the interviews went and what all questions were discussed in the interviews. Secondly, how to prepare, what courses should we opt for, and what will be the cycle of preparation. Thirdly, we will have the question answer round in which you can see the since the chat option is enabled only for the host, you can either ping your questions to me or you can just there was a form, Google form, so I already have the questions with of yours, so I will try to answer all of them. So let's start. In Infosys, the first round was hack with NP round, since all of you might have given it. So there were two online rounds, hack with NP. Second was the campus placements. I have gathered a few campus questions. Just a sec. Yeah, I gathered a few campus questions. So the first one was asked, like it was a simple Fibonacci series. Second was like differentiate between SQL and MongoDB, and third one was like tell about blockchain, like this. And they can ask you any random questions out of any topic. They all have the right to. Second was Agile DX. It had the first online test in which they asked, like I don't exactly remember what the questions was. The first question I guess was make a 100-year calendar. Second was permutation and combinations, and third one was a hockey game in which you have to place your players in such a way that you will win the game. This is it. Guys, should I start my video? A thumbs up if you say yes. Okay, so I'm not going to start my video then. Okay, so we were talking about Agile DX. In the written test, there were three parts. First was coding, in which a simple coding question was asked, but they expected it to be short and precise. Many of the people answered that coding questions, which included DP and graph theory, but I answered it in merely 10 lines, which I wrote up simple Python code. And second was of databases. They wanted us to make tables of the database questions. And thirdly was a puzzle. You can say aptitude puzzle. Then we had three technical rounds, and in first technical round, logic behind the code that I wrote in the written test was discussed. And in the second TR, they made me write the code again of the database question, and they asked me that which approach did you follow. So I followed the top to bottom approach, and then they said that apply some other approach. So in which I applied some other like bottom to top approach in SQL, and followed by some questions from the minor, and the last year in which they it was totally based on what I did on internship. So this is how the Agile DX interview went. And thirdly was Cognizant. The online test of Cognizant was of like average difficulty. I will not say that it was easy, but the interview of Cognizant was really easy. So this is how all the three interviews went. So if you guys have any queries in between, you can just ping me on chat. The chat option for host is enabled, right? So talking about, since you all are in third year, and the first question that comes up in mind is how to prepare for placements. Like since this month is April, and I assume that the placements start from the last week of July. We had the first
session of Cognizant in the July last week previous year. So assuming you all have 90 days, 3 months left. So how to prepare for interview is with the right direction and with the right courses you opt for is the main thing. So how many of you are from non-coding background, like don't know coding even at all? A thumbs up, guys. Okay, so this many people are raising. I'm assuming that these many people do not know coding at all. Just one more thing. How many are third years in the list? Thumbs up again. I would want everyone to be little responsive what Nidhi is asking so that we can have a fair idea what all students are have come here and what should we target for you, right? So yes, a thumbs up if you are a third year Okay, student. so there are a lot of yes. Yes, okay. All the people have raised their hands. All right, all right. Okay, so let's start with. I just prepared a small thing. So yes, our first target will be choose a language. See, for those who are not at all related to coding or even are related to a little bit, you have to first target what language you are going to work on. See, there are three languages first of all when we start coding, like either C++ or Java or Python, right? So you have to choose which language you're going to direct in. For example, if you have a clear knowledge of syntax but you want to practice algorithms, right, Python is a easy base to practice those. Second, if you want to become a developer, like you want to go in pure technical things, I would prefer learn Java, because in 3 months it is the optimum time to learn Java, because not just talking about cracking the interviews, if you are going to work as a developer, Java is the most popular thing that people ask for in a company, in a tech company, right? And after choosing the language that you're going to work on, you have to choose a course, because course will prepare you from the theory. Like talking about me, my life cycle was in 2019 of January. I started a course of Python from Neptil, right? It was a course of like 12 weeks. So after completing the course, I got an internship in machine learning in Vidu Sky, and that required me using Python language to for data cleaning and for other purposes as well. So from that, my project, because of that project, my skills got uh, hello, hello, I guess. Yes, you are audible. Okay. तो मतलब मेरी skills ठीक हो गई just because I got the project. After that I took tuitions also. मतलब उस tuition से क्या फायदा हुआ कि the student who used to ask me कि यार ऐसे कैसे होगा, the interview asked the same question. So the basic point was, first choose a language, second do a course. Course will make you abundant with the theory, right? मतलब आपको सारी चीजें पता रहेंगी, अंदर से चीजें चल क्या रही हैं. Thirdly, I would suggest pick a project. फ्रॉम प्रोजेक्ट आई मीन, अभी जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है, आप लोग बोलोगे कि वी आर नॉट गेटिंग इंटर्नशिप्स. इट इज नॉट द फैक्ट. पीपल आर वर्किंग इन वर्क फ्रॉम होम एंड यू विल हैव प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली. इफ यू गो एंड सर्च ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू विल डेफिनेटली गेट देम. तो अगर आप अपने कोर्स के हिसाब से अपना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट निकाल लेंगे, तो अगर मतलब बेसिकली ये चीज है कि आपने सीखा, थ्योरी तो सीख लिया, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है. If you just know the theory and do not know the implementation, it is of no use. So choose a language, do a course, pick a project. Then fourth is practice interview questions. अब आपको पता है कि आपको थ्योरी आ गई, आपको पता है कि आपको प्रोजेक्ट आपने कर लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. Thirdly, अब जो इंटरव्यू में जैसी जैसी चीजें पूछी जा रही है, आर यू एबल टू सॉल्व देम? अगर नहीं, इफ योर आंसर इज नो,
go back to the second point, do the course again, not the same course maybe, but choose another course, because अगर आप different courses करोगे, that will give you idea कि काफी चीजें बहुत fast होती हैं, एक course सारी चीजें cover नहीं कर सकता, you have to pick up many different courses from many different websites. I did a course from Neptel. स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता है नेप्टेल, आई नो, बट नेप्टेल की एक खास बात ये है कि वो डिटेल्स में जाता है. सेकेंड, फॉर जावा बिगिनर्स, फॉर द लर्निंग द सिंटैक्स, आई वुड प्रेफर कोड अकेडमी. Thirdly, I guess hashtag plays will also put up videos, right, Akshay sir? Yeah. Yeah, so you can practice on that also. Thirdly, I would suggest 3 महीने हैं, एप्टीट्यूड को साइड बाय साइड करते रहो. मतलब मैंने तो जीएफजी के 100 पजल्स का एक वो सेट आता है, अगर आप उन 100 पजल्स को सॉल्व, और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर 100 पजल्स को आप सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में पक्का से आएंगे ही आएंगे. एंड देयर इज अ बुक ऑल्सो, आर एस अग्रवाल, बट उसमें क्या होता है, पीपल फाइंड इट सो बोरिंग, तो मैंने इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का वो एक बना दिया. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, होल्ड ऑन. आप लोग सब उसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू वांट टू, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. ओके फाइन, आई गेस द स्क्रीनशॉट इज डन. ठीक है, तो मेनली ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आर एस अग्रवाल के अंदर मिल जाएंगे. और अगर आप मतलब 3 महीने में, मैं तो सोच रही हूँ कि आप लोग ऑलमोस्ट बुक को खत्म करने का ट्राई करें, बट जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू डू दैट, एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स तो आप लोग कर ही लें, बिकॉज दिस विल हेल्प. मतलब ये जनरली आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर. फाइन. और जो 100 पजल्स वाला है, गीक्स फॉर गीक्स में इफ यू सर्च 100 पजल्स, देन यू विल गेट इट. मतलब आप सीधा सर्च कर लो, उसमें जितने भी सारे पजल्स है, इंटरव्यूज जनरली है वो वहीं से ही चीजें निकालते हैं. दैट इज आई जस्ट सॉ द पैटर्न, सो दिस इज व्हाट. और एप्टीट्यूड के लिए श्योरली रेफर हैशटैग प्लेस, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी ज्यादा, मतलब दे firstly analyze the pattern from the previous company's questions and then they put it on the website. So surely do refer the hashtag please. And second, after going to the appy, join the network. For example, I preferred Facebook developer circle. You know, in IT, if you keep helping, you will keep on increasing your knowledge. Like just Facebook dev circle में मैंने join किया था, तो मेरे एक workshop थी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिस पे, तो मतलब मुझे उस टाइम लगा था कि यार मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बट जब इन्फोसिस के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि सीक्वल और नॉन सीक्वल में आप डिफरेंस बताइए, तो आई वाज एबल टू आंसर. Thirdly, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, बिल्ड स्किल्स जो कि इंटरव्यू को ना आती हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टोरी में देखें तो मैं जैसे इमेज प्रोसेसिंग का मैंने माइनर उठाया था, और इमेज प्रोसेसिंग को मैंने अच्छे से, लाइक इवन आई डिड अ कोर्स ऑन इमेज प्रोसेसिंग ऑन नेपटल. तो उससे क्या हुआ था कि इंटरव्यू को जनरली इमेज प्रोसेसिंग नहीं आता होगा, तो यू विल कॉन्फिडेंटली आंसर इट, और अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो दे विल नॉट नो द आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो बेसिकली एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने वाले को, जिस पे कॉन्फिडेंस ना हो और उस पे आपकी स्किल्स 9 आउट ऑफ 10 हो, राइट. एंड नाइन्थ इज इंटर्नशिप ग्रैबिंग. फर्स्टली आप लोग सोच रहे हो कि इंटर्नशिप को लेना कैसे है. मेनी पीपल ट्राई ऑन BSNL, ट्राई ऑन अदर गवर्नमेंट जॉब्स, जिससे कि हमें मिल जाए, बट आई प्रेफर कि मतलब व्हाट आई डिड वाज, मुझे चाहिए थी मशीन लर्निंग के अंदर. आई गूगल मशीन लर्निंग कंपनीज नियर मी, एंड देन मैंने हर एक को कॉल लगाना शुरू किया था. इट वाज अ पीरियड ऑफ 2 months. आफ्टर 2 months आई गॉट द इंटर्नशिप, सो दैट वाज इट. बट तो वही चीज है, अगर आप इंटर्नशिप को लाइक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कर लोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, इफ यू आर डूइंग इट, दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज इंटर्नशिप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपका सेम फ्लो रहेगा तो द इंटरव्यू विल नो कि यार आप किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, राइट. अच्छा मैं बोले जा रही हूँ, डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो स्टार्ट कर देना. Alright. They can raise their hands and then chat, or you can start video sharing. Like they can turn on their video and raise their hand if there is a doubt. Alright. नहीं मैं वीडियो तो नहीं देख पाऊंगी सबकी शायद. ठीक है,
ओके, आप चैट पे पिंग कर देना, कोई इशू नहीं है। तो हाँ, तो इंटर्नशिप और हाँ, ट्राई करना, बिकॉज़ कोविड-19 की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि जॉब्स थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। तो ट्राई गेटिंग अ पीपीओ। फॉर द पीपीओ you need to work hard in the internship. And please do not glamorize the resume, because people doing internship is BSNL, DRDO, everywhere, and they don't even know the skills that they have done, right? तो इंटर्नशिप चाहे किसी बेकार कंपनी में हो, बट होना ये चाहिए कि आपने जो किया है उसके अंदर आपको बाय हुक और क्रुक पता होना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। एक चीज और, जैसे हम लोगों ने स्किल्स सीख ली, फॉर एग्जाम्पल यू डिड अ कोर्स, यू लर्न पाइथन, यू पिक्ड अप अ प्रोजेक्ट, यू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, फाइन। अगर आप लोगों का टारगेट ये रहेगा कि हमें खाली इंटरव्यू क्रैक करना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे, तो आपका डायरेक्शन थोड़ा रहेगा कि यार ये क्वेश्चन आएगा, हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, टेस्ट केस पास हो गए, खत्म। नो, हमारा टारगेट रहना चाहिए कि जैसे कंपनी में काम करना है, आपकी जो नॉलेज आपने गेन करी है इन 3 महीनों में, क्या आप उसको यूज कर सकते हो? आई I मीन mean, क्या आप उसको यूज कर सकते हो काम में? क्या कंपनी वाले आपका यूज ले सकते हैं? दैट शुड बी योर मेन पॉइंट। इंटरव्यू अपने आप क्रैक हो जाएगा। इट इज नॉट दैट अ बिग डील। 11th I wrote is English. Yes, you have 3 months. English is not just important for speaking and just for flaunting. English is important because अगर आप कई इंटरव्यूज आपको बाइलिंगुअल होना अलाउ नहीं करते हैं, आपको हिंदी अलाउ नहीं करते हैं, सो इफ यू डोंट हैव द बंच ऑफ वोकैबुलरी विद यू, you are not going to, you will not be able to express what you want to, what you have done in your project, and what you really want to say. For that, I would recommend all of you to watch TV series only English, listen to only English songs, and just make a environment of English all around you. All right. So this was all. Basically, the point was choose a language, do a course, pick a project, practice interview questions, go back again if you're not able to crack those interview questions, do a course again from some other website, pick a project again, practice interview questions until and unless you're satisfied. Side by side, keep doing the aptitude thing on hashtag plays, on Geeks for Geeks, that 100 puzzle thing, and pick up the book RS Agarwal. I know it's boring, but do practice those important topics that I have mentioned. Keep helping and join networks. Do not really skip the helping वाला part. मतलब उससे आपको बहुत चीजें मिलेंगी. Either take tuitions if you can, or help your teammate in their code. Build skills. Basically जो interviewer को ना आती हो, it can be anything. It can be extra co-curricular activity. Basically academic में आप देखो तो easy वाले तो अपने minor की चीजों में ही अगर ढंग से focus कर लें, तो वो चीज बहुत सही होगी. And internship should be in the direction of your resume. इंटर्नशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं और कर ली और आपका स्किल सेट कहीं और जा रहा है. इट शुड इंडिकेट, बेसिकली आपका रिज्यूमे इंडिकेट करना चाहिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इंग्लिश, कीप लर्निंग, बी एन ऑलराउंडर, बिकॉज सिंस रिसेशन इज जस्ट अबाउट टू कम, तो ये चीज होनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक स्किल नहीं आती है, आपको एटलीस्ट 2 या मेन 3 स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए, राइट? सो दैट इज ऑल. नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉर्म. ऑलराइट. Oh my God, there's so many questions. Akshay sir, you want to say something in between? Yeah. So the motive for this session was कि जो ये अभी हमें टाइम कोविड-19 की वजह से मिला है, मे बी मार्केट डाउन हो या जो कुछ भी है, बट आई थिंक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी. ऑल्दो यस रिसेशन आएगा क्योंकि मार्केट डाउन हुई है, सो कंपटीशन भी उसी वाइज टफ होगा. सो मेरा मोटिवेशन मतलब मोटिव ये था इस टॉक का कि जिसने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ना, आज अप्रैल है, 19th अप्रैल है. सो अगर आप अप्रैल से भी अभी शुरू करो, आपके पास ये लगा लो कि अगर आप 2 महीने वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप भी करोगे, तब भी आपके पास बहुत कम टाइम बचा देखा जाए तो. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर कॉलेज अगस्त से स्टार्ट हो गए, सो कंपनीज आती हैं, मतलब ये तो पक्का है कि लास्ट ईयर से कम ही आएंगी. बट अगर जो भी आती हैं उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप CS के हो या IT के हो. फर्स्ट चेक बस एक कंपनी सबसे पहले लगाती है कि वो एलिजिबल किस किस को कर रही है. फर्स्ट CGPA होता है, सेकंड वो ब्रांच करती है. अगर फर्स्ट मेल में ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो अलग बात है. बट अगर आप EC के होके कंपनी ने एक्सेप्ट करा है कि आप EC के हो, हम आपको ले सकते हैं, तो अगर उसमें भी आप सेलेक्ट नहीं होते तो इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी थी.
सो आई वुड जस्ट वांट कि इस टाइम का जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ. आई नो कि भाई इस टाइम पे इतना फ्री टाइम मिल रहा है, नेटफ्लिक्स देखोगे, ये सब देखोगे. आई एग्री कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि ऐसा करो कि 5 दिन काम करो और 2 दिन चीट डे लो अपना. 2 दिन पूरा नेटफ्लिक्स देखो. मुझे पता है 2 दिन में भी बोर हो जाता है इंसान देख देख के. तो आई वुड सजेस्ट दिस ओनली कि आप अभी से ही तैयारी करो. मतलब मेरे से पूछो, जयेश से पूछो या निधि से पूछो, जैसे भी तैयारी करनी है. कहीं पे भी इशू आ रहा है, आई एम 24/7 अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. काफ़ी बच्चों के मैंने डाउट्स ऑन पर्सनल कॉल भी सब बताया है कि कैसे करना है. किसी किसी बच्चों का मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि व्हाट दे हैव डन इज कि 2 और 3 स्टूडेंट्स केम टू मी, मैसेज मी एंड सेड कि हम ऐसे ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें बताओ कैसे करना है. मैंने उन्हें बताया कि इस हफ्ते ये वाला टॉपिक आप डिसाइड करो, नेक्स्ट वीक मुझे बताना कितना हो गया, फिर मैं अगला टॉपिक बताऊंगा. सो ऐसे पर्सनल ट्रैकिंग भी हो रही है मेरे साथ. तो सो इफ़ यू वांट, आई कैन, मतलब आई कैन डू विद 100 ऑफ स्टूडेंट्स. आई नो कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना. व्हाट आई थिंक इज कि जो मोस्टली मिस होता है बच्चों से वो यही होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि किस कंपनी के लिए कैसे पढ़ना है. और आई स्टार्टेड दिस हैशटैग प्लेस ऑन January 1st 2019. सो हाँ, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस इसका हुआ है और 1 साल अपनी प्लेसमेंट के टाइम पे हुआ था. तो येस, आई नो कि कैसे पढ़ना है और कैसे कंपनीज क्वेश्चन पूछती है. सो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, मैसेज मी, कॉल मी एनी टाइम. हाँ, ऑल्दो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर माई कंपनी एज वेल, सो मैं भी डायरेक्टली जल्दी अप्लाई ना करूँ, बट हाँ, ऑन वीकेंड्स आई एम 24/7 अवेलेबल. ऑल्सो अभी ये टाइम है कि अब थर्ड ईयर में हो, सो ट्राई करना कि अगर आपकी CGPA 7.4 या कुछ है ना, तो मेरे ख्याल से अभी भी T2 T3 जैसे भी होंगे, ट्राई करो कि 7.5 से अबव कर लो. क्योंकि जैसे ही आप 7.5 से अबव CGPA हो जाती है आपकी, तो आपके 95% कंपनीज में बैठने के चांसेस हो जाते हैं. ऐसा ही है कि अगर आप, ऐसे ना हो कि 6.5 पे कोई कंपनी लेके जाती है और आपकी 6.54 ही रह गई इस सेमेस्टर. सो CGPA मैटर कर जाती है प्लेसमेंट के टाइम पे. वो जब इवेंट सेमेस्टर आ जाता है तब ऐसा होता है कि भाई 6 CGPA वाले को भी बैठने दे रहे हैं, सबको बैठने दे रहे हैं. सो अभी भी बेटर चांसेस हैं कि इस सेमेस्टर भी जितनी थोड़ी बहुत मेहनत उस चीज़ पे हो सकती है. आई वुड से कि जो एज केसेस पे है ना 7.4 या 7.9 पे 8 करना है, तो उन्हें 8 या 7.5 कर लो. जो बीच में, वो अब इस सेमेस्टर में एटलीस्ट कोई हेल्प नहीं हो सकती उनकी. मतलब आई डोंट थिंक सो कि एक सेमेस्टर की CGPA से आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा. सो या, ओवर टू यू निधि. Okay, yes. So that is what that is the right point that he said कि यार CGPA मैटर करती है. ऐसा नहीं है कि CG बहुत अच्छी होनी चाहिए. CG इतनी होनी चाहिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाए. बेसिकली 7 से अगर आप लोग ऊपर रख सकते हैं तो ट्राई इट. मतलब दुख सबसे ज्यादा होता है कि जब आपकी 6.9 होती है, 6.4 होती है कि 0.1 की वजह से यू आर अनएलिजिबल. सेकेंड, यस, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी टेक्स एप्टीट्यूड राउंड. ऐसा नहीं होता कि खाली मास रिक्रूटर्स रहते हैं. मैंने 4 कंपनीज दी थी और चारों ने एप्टीट्यूड राउंड लिया था. अभी मैं प्रेफर करूंगी सीपी, जिन्हें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वो सबसे पहले तो मैं प्रेफर करूंगी कि स्टार्टिंग से लैंग्वेज का क्रक्स सीख लें. बिकॉज इवेंचुअली जो कंपनीज मैंने देखा है कि काम करवाने के लिए देखती है आपके पास नॉलेज कितना है, इंस्टेड कि यार मतलब आपने कितना टेस्ट केसेस पास करे हैं. बेटर कि आप डेवलपमेंट साइड में जाएं. और जनरली डेवलपर्स के लिए जावा ही यूज होती है. मतलब मेरे को पहले जावा नहीं आती थी तो मुझे बाद में सीखनी पड़ी, तो दैट इज क्वाइट टफ कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको जावा सीखनी पड़ रही है. इंस्टेड आपके पास 3 महीने हैं, तब आप आराम से सीख सकते हो. ओके. यस, डीबीए डेटा स्ट्रक्चर्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कंपनी में यूजुअली खेल सिर्फ हैश मैप्स, मैप्स और एरेज का ही होता है. तो अगर आप अभी सीख लो, मतलब 3 महीने सफिशिएंट फॉर यू टू बिकम अ एवरेज प्रो इन अ लैंग्वेज. तो अगर आप लोग ढंग से करें और साथ में एप्टीट्यूड और इंग्लिश को मत छोड़ना, बिकॉज जस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ कोडिंग इज नॉट एट ऑल इनफ टू क्रैक इंटरव्यूज. oops is important, yes, obviously. Okay, so I'm going to take some questions from the forms. Yes. uh, हाँ, how to keep yourself motivated in this journey? So many people have asked me. यार वैसे तो अगर आप सिर्फ खुद को बोलोगे कि करना है तो उससे तो मोटिवेशन नहीं आता है यूजुअली. I suggest कि take a project that has a deadline.
मतलब in NPTEL they had a deadline of assignments, every Wednesday I had to submit it. तो मैंने मतलब जैसे एग्जाम लिया था, तो अगर आपको एक सर पे डेडलाइन की घंटी रहेगी तो ऑब्वियसली आप काम करोगे, फिर इवेंचुअली आपको आदत पड़ जाएगी. सेकेंडली यू कैन ट्राई टू मेक अ टीम. मतलब जनरली टीम में क्या होता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपका टीममेट यूजुअली विल पोक यू अप कि यार तुम काम करो एंड ऑल, एंड डिवाइड दी वर्क. ऐसा ना हो कि जैसे तुम्हें सामने वाले को वेब डेवलपमेंट आता है, मुझे कुछ और आता है, तो तुम अपना काम करो. ट्राई टेकिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स व्हाइल वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट. और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में ये रहता है, यू हैव मेंटर्स आल्सो, तो आपको अगर जो चीजें नहीं आती हैं आप वो चीजें भी सीख पाओगे. yes 3-4 months है enough. for now you have 90 days approx. और ऐसा नहीं होता जनरली, जो एप्टीट्यूड वाली चीजें होती है वो अगर आप लोग अभी 3 महीने में उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे तो यू डू हैव टाइम अलोंग विद द प्लेसमेंट्स आल्सो कि आप साइड बाय साइड एप्टीट्यूड कर लो. बट फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को एक बार निपटा लो, कि मतलब यू शुड बी स्ट्रॉन्ग कि 3 महीने बाद अगर कोई आपसे डाउट पूछना है तो यू विल हैव द एबिलिटी टू सॉल्व दैट. और अगर मतलब ये शायद ही आप लोगों से हो पाए, बट ट्यूशन अगर या किसी बच्चे को पढ़ाना द सेम सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, प्रो नहीं हो कोई बात नहीं, जितना आता है एटलीस्ट आप उतना पढ़ाओगे तो जो सामने वाले क्वेश्चंस करेंगे सेम ऑलमोस्ट इंटरव्यूअर्स भी यही क्वेश्चंस करते हैं. फॉर एप्टीट्यूड आई गेस साइड बाय साइड करना तो इज मोर देन इनफ. और अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लो RS अग्रवाल बुक से, तो ऑलमोस्ट आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा, विच विल रिक्वायर अप्रॉक्स अ मंथ. सो दैट इज ऑल यू नीड फॉर एप्टीट्यूड. एंड बाकी जैसे हैशटैग प्लेस पे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, कीप ऑन सॉल्विंग इट, कीप ऑन गिविंग टेस्ट. तो टेस्ट से क्या होता है, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. For Java, I already recommended Code Academy, but that is only for syntax level. Udemy is also good. और यार मैं फिर से नेप्टल सजेस्ट करूंगी. आई नो ये बहुत बोरिंग चीज है, बट नेप्टल वाले बहुत डीपली पढ़ाते हैं, तो दैट इज गुड. और यू कैन ट्राई दैट हार्वर्ड स्कूल का एक CS 150 बोल के कोर्स है विच इज फ्री, दैट इज ऑन यूट्यूब, दैट इज ऑल्सो यू कैन ट्राई. अक्षय सर म्यूट खोल दें क्या सबका, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो. व्हाट डू यू थिंक? Yeah. गाइस लैंग्वेज के लिए फॉर एग्जांपल जावा इज गुड फॉर डेवलपमेंट. जैसे आप लोग कॉन्फिडेंट होकर 3 महीने आप लोग ढंग से टाइम दे पाओगे कोडिंग को और आपको उसी फील्ड में जाना है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, तो आपको पहले जावा ही ऑप्ट करनी चाहिए. बिकॉज आई अज्यूम इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो आपको उसको सीखने के लिए पहले थ्योरी सीखनी पड़ेगी, फिर प्रोजेक्ट, फिर ये. पाइथन उनके लिए अच्छी जिन्हें पहले से चीजें पता है, ऊप्स वाली चीजें, तो आप ठीक है, आपको खाली टेस्ट केस पास करना है, एल्गो सीखनी है, तो यू कैन गो फॉर पाइथन. पाइथन इज कंपैरेटिवली इजी than Java and C++. And Python is basically used for कि libraries उठानी है, machine learning पे काम करना है, तो उस field वालों के लिए Python is good. Controllers बनाने हैं, like that. For non-tech company guys, इतना coding का नहीं होता है. For non-tech companies, you just have to be a good orator. आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, एंड यू हैव टू नो कि चीजों को मतलब लाइक द क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन अ नॉन टेक कंपनी, सेल दिस थिंग और सेल दैट थिंग, और you should be well aware what is happening around you, and you should be able to express your thoughts in English. That is the main thing. So if there are still doubts left, I would say raise your hand and we will unmute the person one by one so that he can speak his or her doubt, and then we can proceed. So I can see 3 people having doubts. So yeah, Krishan Mishra. Nidhi, can you please unmute? Akshay, please, yes. Akshay, please take over this question, right? Yeah. Krishan Mishra. I've unmuted him. He is not getting unmuted or no. It will take 2 seconds. Okay.
अच्छा हाँ, मेजर्स और माइनर्स की बात, जैसे रिज्यूमे में यू हैव योर माइनर का प्रोजेक्ट, तो मेनी पीपल इन वन और द अदर टेक राउंड दे श्योरली आस्क व्हाट यू डिड इन माइनर और योर मेजर। मतलब प्लीज कहीं से उठा के मत लाना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स को और इंटर्नशिप के काम को। मतलब खाली फॉर द सेक ऑफ डूइंग, डोंट डू दैट। माइनर में जो काम हो रहा है, माना कि आपके फील्ड का नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज व्हाट इंटरव्यू जजेस कि यार आपने अगर वो प्रोजेक्ट ढंग से नहीं बनाया, अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं आते, तो आपको हम जो सिखाएंगे वो भी नहीं आएगा। तो ट्राई डूइंग योर मेजर एंड माइनर वेरी सीरियसली। फॉर माई माइनर इट वॉज इन इमेज प्रोसेसिंग। तो मैंने इमेज प्रोसेसिंग के लिए पहले कोर्स किया था नेप्टल से, फिर उसके बाद आई थॉट कि मुझे इमेज प्रोसेसिंग के बाद मुझे मशीन लर्निंग में जाना चाहिए, जिसमें मैं आईपी का यूज कर सकूंगी। तो मैंने फिर उसके लिए पहले पाइथन सीखी, फिर मैंने मेजर उठाया डीप लर्निंग में, फिर उसके बाद एक रिसर्च पेपर लिख दिया। तो मेरा जो रिज्यूमे था वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो डू। गाइस, ऑनलाइन कोर्स तो यार आप खुद कर ही रहे हो, इंटर्नशिप से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं। ओके, सो देयर वाज अ क्वेश्चन, वुड एन ऑनलाइन कोर्स बी वर्थ इट इफ इंटर्नशिप इज नॉट पॉसिबल? यार मतलब ऑनलाइन कोर्स आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, बट ट्राई डूइंग इंटर्नशिप्स। और इंटर्नशिप्स के लिए आप खुद से अप्लाई करो, लाइक डू नॉट गेट अ रेफरल और समथिंग। जब तक आपको खुद से आप अप्लाई नहीं करते, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, राइट? Go on Google, type your domain name, type the nearby companies that you have, just call their representatives and demand for an interview. पैसे नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, इस टाइम पे what is important is gaining knowledge rather than money. So try doing an internship in a good profile, rather than it can be a small firm also. I think Devin Wadhwa has a question. Can you please unmute Yeah, him? I'm just unmuting him, just a second. कर दिया Yes. मैंने। Hi, my question is only this that DBMS कैसे हैंडल करें, मतलब ईसी वाले हम स्टूडेंट्स ने कभी बेसिकली डीबीएमएस पढ़ा नहीं है, तो मतलब कहाँ से कर सकते हैं? ओके, सो डीबीएमएस का यार आई वुड से मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है इंटरव्यू में, डीबीएमएस एज अ होल सब्जेक्ट में सिर्फ माई सीक्वल क्वेरीज पूछी जाती है, आई गेस, राइट? एंड राइट राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट दीज माई सीक्वल क्वेरीज, आपको वो पता होगा क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन पूछा जा सकता है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। हाँ, एसक्यूएल क्वेरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे करती है, एसक्यूएल क्वेरीज करवाती है। एंड दिस इज अ फैक्ट कि चाहे वो टेक हो या नॉन टेक कंपनी हो, वो एसक्यूएल क्वेरीज करवा ही लेती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि इतना तो टेक वाले बंदे को आना ही चाहिए, राइट? तो मतलब माई सीक्वल क्वेरीज आर समथिंग कि जो आपने शायद तक 9th-10th में भी पढ़ी होगी बहुत स्टार्टिंग में, बट हाँ उसे थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव कभी नहीं कीजिए। पढ़ी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी भी गीक्स और गीक्स पे जाके माई सीक्वल आप पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है, मतलब 3-4 महीने पड़े हैं आपके पास, मेरे ख्याल से वो आपको 1 वीक या 2 वीक्स लगेंगे आपको, आप उसमें से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। वो देखने में बड़ा लगता है, बट आप जैसे जैसे देखोगे तो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं वो। प्लस जैसे आप वो कर लेते हो तो हैकर रैंक वगैरह पे या हैकर अर्थ पे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए आप वो कर ओके। सकते हो। और बिल्कुल जब इंटरव्यू से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको पढ़ के जाना हो, वैसी सिचुएशन आ जाए, तो यू कैन टाइप ऑन गूगल की टॉप 50 क्वेरीज आस्क्ड इन इंटरव्यू। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते होंगे तो आप वो क्वेरीज समझ सकते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, मतलब कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। यू कैन गूगल इट की टॉप 50 क्वेरीज आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑफ माई सीक्वल एंड प्रिपेयर देम। और ऐसा नहीं कि हर इंटरव्यू से पहले वो पढ़ के जा रहे हो, एक ही बारी पढ़ो और नोट्स बना लो। तो ये ना हो कि हर बारी गूगल पे आपको करना पड़ रहा है कि यार टॉप 50 कौन सी क्वेरीज है, आपको हर बारी एक नए लिंक से पढ़ रहे हो। ऑलराइट, ओके ओके। तो जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था डेटाबेस का एक ऑनलाइन टेस्ट में। सो उन्होंने बोला था कि हाउ विल यू अरेंज द टेबल्स एंड लिंक इट। तो उस टाइम मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज ही पता थी, तो मैंने मतलब कुछ भी बना के मैं आ गई। और सिंस मतलब मेरे मेजोरिटी क्वेश्चन सही थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर उन्होंने मेरे से टेक्निकल राउंड में पूछा था कि आपने ये अप्रोच लगाई, तो मैंने बोला कि सर मुझे बस यही आती थी, तो मैंने टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाई थी, जैसे थिंग।
तो मतलब मैंने बोला मुझे बस ये, कहते अच्छा दूसरी अप्रोच लगाओ, तो मैंने उसको बॉटम टू टॉप कर दिया था। तो दे वर लाइक आपने बॉटम टू टॉप क्यों लगाया? मैंने कहा सर मुझे सिर्फ 2 अप्रोचेस पता थी। सो उसी टाइम उन्होंने टेक्निकल राउंड के अंदर ही मुझे एक्सप्लेन किया कि चीजें कैसे चल रही है, एंड आई आंसर्ड इट। तो बेसिकली अगर आपको चीजें इन केस नहीं आती हैं और तो दे ऑल वांट इज कि आप बस सीखने लायक तो हो ना, दैट्स ऑल। मतलब अगर हम सिखा रहे हैं एंड इफ यू आर ग्रास्पिंग इट देन इट इज वेल एनफ। Okay. Baki, Thank in you. the near future, I will be also posting all these SQL queries on hashtag place website also. Right now, I'm building content on this and analyzing with all the history, computer science interview experiences. All right. So yes, it will be posted by the time you will be getting placements, companies in your college. Okay, we have a question. Thank you, Devin. I'm just muting you up. We have a question. Scope of web developers. Yes, there are so many companies with so nice packages. Josh Technologies team, I guess. Behance Technologies. तो वो मतलब generally companies अगर वो criteria नहीं रखती हैं तो वो ये नहीं देखती हैं आप easy के हो या CS के हो. All you need is just knowledge. तो yes, web developers का scope है. I want to answer this as well. So about web development, I would say कि mostly companies, when they give the mails to you कि we are coming for hiring, they give as a profile, tech profile as software developer or software development engineer. But most of the companies are working on the websites only. Around 50 to 60% our companies are working on website only. My company SplashLearn also came for software engineer one, but what I am doing is I am also doing web development only from the backend side. So yeah, web development का काफी अच्छा scope है, and also C++, Java mostly सब बच्चे करते हैं, I would say. But when a company is coming for web development या जो भी है, I would say कि आप इन 3-4 महीने में एक web development की skill जरूर build कर लें, क्योंकि it is an advantage कि अगर आपको C++, Java के अलावा आपको एक कोई web development की language भी आती हो, may it be HTML, CSS. Why I'm saying HTML, CSS? Because अगर आप बैक एंड डेवलपर काम करते हो तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप हर छोटी चीज के लिए फ्रंट एंड पे ब्लॉक ना रहो, कि अगर फ्रंट एंड वाला बंदा जो आपके साथ काम कर रहा है अगर वो नहीं आया तो इतना यू शुड आल्सो नो कि यार हाँ ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, और अगर मैं इसे हल्का सा चेंज कर दूंगा तो ये चीज हो जाएगी. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. सो या आई वुड से कि एक स्किल फ्रंट एंड की आपके पास होनी जरूरी है वेब डेवलपमेंट एंड से. सो या वेब डेवलपमेंट का स्कोप काफी है आज की टाइम में. और हाँ, सीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर आप 0.1 से भी रह गए तो हमारे कॉलेज वाले विल नॉट अलाउ. सो ट्राई कि आप मतलब जितनी मेहनत या कर सकते हो, 3 months इज मोर देन एनफ to do your online assignments as well as this outer thing like for placements, coding and everything. So please try to maintain your CGPA. Any more questions, doubts? Okay, let me check. How many weeks? So I think there is no doubt left. As Okay, I can there's see. one thing. Does certificates works in a college? यार मतलब certificates generally what interviewer sees your resume. If you talk about mass recruiters, मतलब उनके साथ तो hardly 10 मिनट का इंटरव्यू होता है. तो बस ऊपर ऊपर से देखते हैं. दे आस्क कि आपको ये आता है तो क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं आता है तो वैसे ही भगा देते हैं. तो मतलब इट इज लाइक योर रिज्यूमे शुड बी वेरी गुड. उसमें काफी सारी चीजें होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी प्रिसाइज. अगर आप खुद से पढ़ के देखो तो आपको अपने बारे में एक आइडिया मिलना चाहिए कि आपको क्या काम दिया जा सकता है और आप कितने अच्छे लर्नर है. थर्डली ये सर्टिफिकेट वाली चीज तो लास्ट में आती है. जब रिज्यूमे से सपोज उन्हें आइडिया नहीं मिला तो दे विल गो फॉर सर्टिफिकेट्स. एंड कीप योर लिंक्डइन अकाउंट अपडेटेड. दैट इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड. Okay guys, and lastly I would also like to thank #place. मतलब उन्होंने हमारे टाइम पे मतलब अक्षय sir used to work with office and after office hours he used to collect all the
previous year feedback of the companies. They used to prepare a questionnaire set, और almost pattern वही रहता है companies का, तो it was really helpful. He also did a online test, तो मतलब उससे यार एक confidence तो आ ही जाता है. तो गाइस मतलब हैशटैग प्लेस्ड, और नॉट जस्ट हैशटैग प्लेस, लाइक एवरीथिंग जहाँ से आपको सोर्स मिल सकता है. डोंट बी लेजी कि हमें इस वेबिनार में नहीं जाना या ये चीज नहीं करनी है, ये टेस्ट नहीं करना. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें तो ग्रैब हो ही जाती है. तो यू शुड बी अटेंटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड हाउ कैन यू गेन द नॉलेज. या बाकी क्वेश्चंस या व्हाट्सएप पे आई विल ऑलवेज बी कनेक्टेड. I will also post my email ID, and you already will be having my phone number. So anything will be there. Any doubt, you can just give it on WhatsApp. Okay, so over to Akshay. I'm leaving the meeting. Thank you, guys. Yeah, thank you so much, Nidhi. So she's working on Saturday also, but still she managed to spare some time for us. Thank you so much. So at last, I would like all of you to just raise your hand, or if you have these emotions symbol coming on of clap or thumbs up, or wait, I am opening the chat. Yes, so I need feedback for this. You can rate from 1 to 5, how you like. 5 for the best, 1 would be worst. Yes, so you can chat with the host and give your feedback, please. The feedback is really necessary so that we can continue in future as well. In the coming days, we will be having a session of a student who interned in Microsoft. So yeah, for all data structures and I would request everyone to please give us a feedback and then leave. It would be really nice for us to analyze if this our idea is working well or not, or do we need some improvement. You can write that as well. Guys who are left, please give us the feedback. Or you can raise your hands at last if you are feeling so tired of writing any message. So I'm going to end this meeting in the next 10 minutes. Those who are left, please give us the feedback and let's leave the
Hello, Jayesh.